Hello friends, today in this video we will learn how to implement MVVM structure. Okay, so first I am adding some dependencies in the Gradle file. Okay, so first one is retrofit tool. So this dependency will help for API calling. The second one is JSON converter. This dependency will convert my JSON file into JSON file. Okay. The third one is OCA HTTP3. This is also important for API calling. And the last dependency is Picasso. So all the images जो भी हमारी इस API में आएंगी सारी लिंक में आएंगी तो हमें उस लिंक को लोड करना पड़ेगा इमेजेस में. तो उसके लिए हम इस पिकासो डिपेंडेंसी का यूज करेंगे. ओके. And I am also adding the data binding. Okay. So first I have create the data files, data class. So okay, keep one thing in your mind. If you create a data class, if you create an interface object, keep this Kotlin files in separate packages. Like create my interface package for interfaces and object for object classes, and I create the data class for data package for data classes. Okay. So how we create the packages? So simply click on this uh, package, right click on this package, go to new and click on the package and give the package name and hit enter. आपको जो पैकेज है नया वो यहाँ पे शो हो जाएगा. Okay. So first I'm opening the data class. Okay. So I'm simply name this data class user data. Okay. ये users कहाँ से आया? तो उसके लिए मैं चलता हूँ पोस्टमैन. ओके. तो पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम एपीआईज को हिट करते हैं और जो एपीआई से हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो मैंने इस डमी एपीआई को यूज कर रहा हूँ और इसमें जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमें देख पा रहा हूँ. तो जो हमारा सबसे पहले हमें एक चीज देखना होती है कि हमारा डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है या इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आ रहा है. तो इन दिस केस हमारा जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है. आप इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इस ब्रैकेट से. इफ यू सी द कर्ली ब्रैकेट देन द response is in object form, and if you see the not like this the big bracket in the first row, then this data is in the list form. तो यहाँ पे आप पहला रेफरेंस देख सकते हो यूजर्स. तो ये यूजर्स है. यूजर्स के अंदर जो डेटा है वो पूरा लिस्ट फॉर्म है. तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे यूजर्स. और एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो हमें ध्यान रखने वाली है कि जो जो भी डेटा हमारा एपीआई में आएगा वहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उनके नेम एज इट इज यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेंगे. अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हुए तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं रिसीव होगा. तो मैंने सिंपली जो यूजर्स का जो ये टैग है मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. क्योंकि ये एक लिस्ट टाइप का है तो मैंने इसको लिस्ट टाइप का रखा है. और ये यूजर हमने एक न्यू डेटा क्लास क्रिएट की है यूजर नेम से. या इस डेटा क्लास का आप कुछ भी नाम रख सकते हो बट दिस वैल्यू इज सेम टू सेम एज JSON file, the JSON response. Okay. And I am declare all the
values, key values like the ID, first name, last name, age, gender, image, and address. Okay, so simply I'm copy the key here and paste it here. ID, my ID is in a integer form, first name in string form. So, okay, okay. And you see the address. Okay, so here are the address. Address is in the object form. So I create a new data class for address and adding the web keys here as like the address, city, state, country, जो कि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, है ना? वो हमने यहाँ पे रखी है और यहाँ पे हमने एड्रेस में वो एड्रेस क्लास को पास किया है। ओके, तो हमें जो डेटा क्लास बनानी होती है वो बहुत ही केयरफुली बनानी होती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो हमारा जो डेटा है एपीआई से वो आएगा तो सही, बट वो हम यहाँ पे उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट I create a interface file. Okay, so I'm opening the interface file. Okay, now you see here I'm create a API interface. In this interface, I'm using the get tag. Okay. So get tag, and I'm using users value. Okay, so ये users कहाँ से आया? तो ये users आया हमारी API का सब URL. Okay, so ये जो होता है हमारा, ये हमारा जो बेस यूआरएल हम इसको कहते हैं, और जो इसके बाद जो भी यूआरएल होगा, इन दिस केस here are only here is only users, but in some cases users slash something something हो सकता है। तो ये यूजर्स के बाद जो भी पार्ट आएगा वो सारा हमारा सब यूआरएल। तो वो जितना भी पार्ट होगा वो हमें इंटरफेस के गेट टैग के अंदर पास करना है। Okay, then I create a method get users, and in this method I call the user data. Okay, now after that I create a object class service builder या एक लाइन जो भी कह सकते हो आप। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम अपने बेस यूआरएल को डाला है। देखो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज और मतलब नोटिस करने वाली है कि अगर आप ये स्लैश इधर पे अगर लगा रहे हो तो आपको ये यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, और अगर आप ये स्लैश जो है यहाँ पे नहीं लगा रहे हो तो आपको ये स्लैश यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? नाउ आई एम क्रिएटिंग द API interface reference variable, and in this variable I'm called to the retrofit dependency dot build dot base URL. Base URL, in the base URL I'm passing the base URL. Okay, then add converter factory json converter factory dot create. यहाँ पे हमारी जो फाइल है, जो एपीआई के थ्रू हमारी जेसन फाइल आ रही है, वो जीसन में कन्वर्ट हो रही है। ओके, एंड देन डॉट build डॉट क्रिएट एपीआई इंटरफेस। यहाँ पे हम अपने एपीआई इंटरफेस क्लास को भी पास कर रहे हैं। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर है। एंड देन आई क्रिएट द रिपोजिटरी क्लास। ओके, तो दिस रिपोजिटरी क्लास मैंने अलग से बनाई है, वो क्यों बनाई है वो भी हम आगे देखेंगे, है ना? तो ये यहाँ पे हमने एक रिपोजिटरी क्लास बनाई है, इसका नाम आप जो चाहे वो दे सकते हैं। ओके, तो इन दिस रिपोजिटरी क्लास आई क्रिएट a function method
fetch users, and this function return live data list of type users. Okay. In this method, I create a data variable mutable live data, which is type of list, and the data class I pass user data class. Okay, so why I'm using the user data class instead of the user data? Because my all डेटा जो काम का डेटा है यूजर्स का डेटा है वो हमारे इस यूजर्स के अंदर ही आएगा, है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस यूजर के अंदर ही हमारा पूरा एपीआई का डेटा आया हुआ है। जितने भी यूजर्स होंगे, यूजर्स का डेटा होगा वो सारा इसी के अंदर है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग यूजर डेटा क्लास को यूज कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट आई एम कॉलिंग टू द ऑब्जेक्ट सर्विस बिल्डर डॉट रेट्रोफिट एपीआई जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। इसके बाद get user is from here, and डॉट enqueue, इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट कॉल बैक पास करना पड़ेगा। कॉल बैक को वो क्या टाइप करेगा, वो हमारे यूजर डेटा क्लास का, क्योंकि यहाँ पे हम एपीआई से अब डेटा रिसीव करेंगे, है ना। ओके, व्हेन यू राइट इट द दिस फंक्शन, इसके बाद आपको टू मेथड्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दिस इज कंपलसरी। आपको एरर देगा, जब आप उस एरर पे क्लिक करेंगे तो आपको टू मेथड्स इंप्लीमेंट करने को बोलेगा। Then जैसे ही आप उनको इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास दो मेथड्स आ जाएंगी, एक ऑन रिस्पॉन्स और एक ऑन फेलियर। तो इन द ऑन रिस्पॉन्स मेथड, इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, देन माय रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर के जो यूजर वाला जो डेटा है वो सारा डेटा हम डेटा डॉट वैल्यू हम इसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे। और अगर ये फेलियर होता है तो हम उस क्या करेंगे, हमारी लिस्ट को एम्प्टी रखेंगे और हम रिटर्न कर देंगे इस डेटा को, रिटर्न कर दिया। ओके, अब जो सबसे मेन पार्ट है हमारे एमवीवीएम मॉडल का, वो है व्यू मॉडल। ओके, तो हम एक व्यू मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। व्यू मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे, इसका नाम देंगे कुछ भी। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे कि एक रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी टाइप का एक यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, है ना। जिससे हम क्या करेंगे कि इस जो मेथड है हमने यहाँ पे क्रिएट किया इसको हम कॉल कर पाए। ओके, और इसमें हम इनहेरिट करेंगे व्यू मॉडल को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने फिर से रेफरेंस वेरिएबल लिया यूजर्स का, लाइव डेटा है हमारा, क्योंकि यहाँ से हम लाइव डेटा ही रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन के अंदर, है ना। उसके बाद हम रिपोजिटरी को कॉल कर रहे हैं, रिपोजिटरी डॉट फेच यूजर। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा आएगा इस फंक्शन के रिटर्न में, तो वो हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। ये हमारा व्यू मॉडल है। ठीक, अब क्योंकि हम व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट सॉरी हमें एक व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो ओके, तो आई क्रिएट अ न्यू Kotlin class which is user view model factory. In this class constructor I am create the repository mm, variable which is type of user repository. Okay, and then inheriting the view model provider dot factory. Okay, after that हमें ये जो create मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर क्या होगा कि अ- हम चेक करेंगे इफ मॉडल क्लास असाइनेबल है यूजर व्यू मॉडल, है ना। अगर हमारा जो यूजर व्यू मॉडल है असाइनेबल है तो हम क्या करेंगे, यूजर व्यू मॉडल को असाइन करेंगे मॉडल क्लास में। और इसके बाद हम रिटर्न में क्या करेंगे, यूजर व्यू मॉडल में हमारी जो रेपोजिटरी है यूजर रेपोजिटरी हम उसको पास करेंगे एज ए टी।
क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वो है टी। तो यहाँ से हमारा जो यूजर रेपोजिटरी है वो कहाँ जाएगा, हमारे व्यू मॉडल क्लास के पास। हम इस जो फैक्ट्री व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास है वो हम इस वजह से यूज कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं इन केस अगर कोई एरर आती है तो। ठीक है। ओके। तो आफ्टर दैट आई एम ओके आफ्टर दैट I am going to activity main layout. Okay. In this main layout, I have add the recycler view. Okay. Give this view a ID. Add all the constraint. Okay. And create a new XML file, which is user list. तो यूजर हमारे जो रिसाइकलर व्यू है उसके अंदर हमें जो डेटा दिखाना है वो किस फॉर्म में, किस मतलब किस तरीके के उसके अंदर हमें लिस्ट दिखेगी, वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई हुई है। ओके। आई एम यूजिंग द इमेज व्यू। इन दिस इमेज व्यू द यूजर इमेज विल शो, एंड देन द tag. This first text view is for the user's name, second text view is for user's email, and the third text view is for user's phone number. Okay, here the interesting part will come. I am using data tag for the, I mean data. अब वो कैसे बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है यूजर का, और जो वेरिएबल है वो हमारी यूजर डेटा क्लास टाइप का है। जो डेटा क्लास है हमारी यूजर उस टाइप का है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पे हम अपने जो बात करता हूँ मैं, जो यूजर का डेटा है हम डायरेक्ट इसको यहीं पे असाइन कर दे रहे हैं। हमें बाद में देने की जरूरत नहीं है। हमें केवल जब हम इसको, इसकी एडाप्टर क्लास बनाएंगे, तब हम डायरेक्ट वहाँ पे यूजर का डेटा, पूरा डेटा हम यहाँ पे बाइंडिंग में इसको दे देंगे। और उसके बाद हम जो नॉर्मल यहाँ पे नेम हमने यूज किया, यूजर डॉट नेम, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके यूज हो जाएगा ना। so this will be easy for developers. ओके। ये थी हमारी जो बात करते हैं यूजर लिस्ट लेआउट। ओके। so now I'm creating the user adapter file. This adapter file is very important for recycler view. And normally we use the normal adapter, but in this case I'm using the list adapter. So list, why do we, why I'm using the list adapter here? Because the जैसे कि हम देखते हैं कि एपीआई से हमारा डेटा आएगा, तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही डेटा है। कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि यूजर में कुछ भी अपडेट हो सकता है ना। तो अब ये लिस्ट अडेप्टर में हमें एक बेनिफिट यही मिलता है कि अगर कोई डेटा जैसे अपडेट हो रहा है तो वो केवल वही लिस्ट को चेंज करेगा। पूरे हमारे जो रिसाइकलर व्यू में जितनी भी सारी लिस्ट हमें दिखेंगी उनको चेंज नहीं करेगा। जो हमारा चेंज मतलब जो डेटा हमारा चेंज हो रहा है या जो डेटा हमारा नया ऐड हो रहा है केवल उसी को ऐड करेगा या मॉडिफाई करेगा। बाकी जो ओल्ड डेटा है वो एज इट इज वही का वही रहेगा। ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर एडाप्टर में हम लोग लिस्ट एडाप्टर को इनहेरिट कर रहे हैं, जिसमें हम हमारी डेटा क्लास को पास कर रहे हैं, यूजर डेटा। एंड हम एक इनर क्लास क्रिएट कर रहे हैं व्यू होल्डर, है ना, जिसमें हम बाइंडिंग का रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि हमारी यूजर लिस्ट बाइंडिंग यानी कि दिस फाइल। ओके। जो हम अपना जो एडाप्टर के लिए जो लिस्ट का लेआउट हमने रेडी किया था। एंड हम इनहेरिट कर रहे हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू मॉडल, सॉरी व्यू होल्डर, और इसमें हम बाइंडिंग डॉट रूट दे रहे हैं। ओके। इसके बाद हम इस क्लास को यहाँ पे पास कर रहे हैं लिस्ट एडाप्टर। ठीक है।
एंड दिस विल, ये पार्ट जो है हमारा सेम है नॉर्मल अडेप्टर की तरह। अब जो आएगा वो लिस्ट अडेप्टर में हमें नई चीज देखने को मिलेगी, वो है हमारी डिफ्यूटिल क्लास। ओके, तो यहाँ पे हम एक नई क्लास बनाएंगे डिफ्यूटिल कॉल करके। मैंने क्लास नाम दिया है, कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हमने ये डिफ्यूटिल क्लास को यहाँ पे इनहेरिट किया है। डिफ्यूटिल क्लास के अंदर हमने आइटम कॉल बैक मेथड यूज किया, जिसमें हमने यूजर टाइप के डेटा को हमने पास किया है। डेटा क्लास हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, व्हेन यू write this, you give some error on this, when you check on this, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दो मेथड्स इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे। दिस इज कंपल्सरी। फर्स्ट इज r items the same and the second method is r contains the same। तो जब हम इन दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें इनकी बॉडी में क्या करना पड़ेगा। हमें ये फर्स्ट मेथड में हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारा जो देख रहे हैं कि हमारा जो ओल्ड आइटम है और जो हमारा नया आइटम है, उन दोनों की आईटी सेम है। अगर सेम है तो हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड द सेकंड मेथड क्या कर रही है कि हमारा जो वो पूरा आइटम है ना, उस आइटम के अंदर सारे जो डेटा है, क्या वो वही सेम है या उनमें कुछ डिफरेंट मतलब चेंजेस है। अगर वो चेंजेस है तो वो चेंजेस को यहाँ पे चेंज करेगा। ओके, तो हम इस क्लास को यहाँ पे पास कर दिया है हमारी लिस्ट अडेप्टर के अंदर। ओके, तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन फाइंड होल्डर, ये सारा हमारा नॉर्मल अडेप्टर क्लास की तरह है, जहाँ पे हम लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से अपना जो लेआउट फाइल है उसको कॉटन ऑब्जेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करके अपने माई व्यू होल्डर के अंदर पास कर दे रहे हैं। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि होल्डर डॉट बाइंड, बाइंड से हम अपनी ये व्यू होल्डर के अंदर जो हमने बाइंड मेथड क्रिएट किया है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। और उसके बाद हम गेट आइटम जो है वो हमारा यूजर टाइप का है, इसमें हमारा पूरा डेटा है ना। और उसमें पोजीशन दे रहे हैं। पोजीशन जैसे लिस्ट की पोजीशन 0 1 2 3, तो जिस भी लिस्ट पे हम हैं तो उसकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी, तो हम उसका डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो ठीक है, तो ये वापस आ जा रहा है हमारे इस बाइंड पे। तो अब हम बाइंड पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारी पिकासो डिपेंडेंसी का यूज कर रहे हैं, पिका फॉर इमेज, है ना। तो फर्स्ट पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, so user dot image, here here are my users image link into binding dot user image। तो पिकासो क्या करेगा, यहाँ से इमेज की लिंक लेके उसको लोड करके और वो सेट करेगा बाइंडिंग डॉट यूजर इमेज यानी कि हमारे इमेज टैग के। सिंपल है, काफी सिंपल। एंड आई एम पासिंग द होल यूजर डेटा into binding dot user। ओके, तो दिस इज दिस डेटा टैग। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था और इसी के थ्रू हम जो डेटा क्लास को यूज कर रहे थे डायरेक्ट। सिंपली हमने क्या किया कि बाइंडिंग डॉट यूजर के अंदर पूरा यूजर का डेटा यूज कर दिया। हमें और अलग से सबको मैं कह रहा हूँ कि अलग से ये टेक्स्ट सेट नहीं करना पड़ा, जैसे फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के लिए लास्ट नेम और वगैरह। ओके, so this is the adapter file now। Now I am coming to the main activity file। Okay, so first I am declare the main activity binding, my view model class and my user adapter class। Okay, then bind the view, binding dot root set content view, and I am creating the user repository reference variable and pass this into my factory class constructor, है ना।
फैक्ट्री क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं रिपोजिटरी को पास कर रहा हूँ और उसका भी एक वेरिएबल क्रिएट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ फैक्ट्री नाम से. ओके. And now in the view model, I'm calling the view model provider class and owner this means this activity. I'm passing the factory and the view model class. Okay. Now I'm setting the adapter, user adapter, okay, recycler view dot layout manager, linear layout context here, this and setting the adapter. Okay. And in the last I'm using the view model dot users. यूजर्स यहाँ पे हमारा जो और मतलब एपीआई से आया हुआ सारा डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा. तो हम इसको कॉल करेंगे. ठीक है. इसको कॉल करेंगे एंड ऑब्जर्व. ऑब्जर्व क्या करेगा? ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी है ना. दिस रेफर्स टू दिस एक्टिविटी मेन एक्टिविटी. ऑब्जर्व क्या करेगा कि ऑब्जर्व लगातार डेटा को चेक करता रहेगा क्या कहीं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है. अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा. तो वो हमारी जो लेआउट फाइल है उस पर भी इमीडिएटली चेंजेस शो होंगे. ओके. तो यूजर इस यूजर के अंदर हमारा सारा डेटा आ जाएगा और हम क्या कर रहे हैं यूजर डॉट सबमिट लिस्ट. सबमिट लिस्ट इज द मेथड फॉर सेंडिंग डेटा इन यूजर अडॉप्टर क्लास especially for a link adapter, sorry, list adapter. Okay. So this is the whole project of MVVM structure. And the most important thing is the permission. If you don't give permission to your app in manifest file, your app will crash. When you install your app and then open your app won't be open. Okay. So internet permission is must because I'm using the API. अगर हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं होगी तो हम एपीआई को किस तरीके से कॉल करें. ओके. तो नाउ आई एम रनिंग दिस ऐप. ओके. यहाँ पे मेरा सारा डेटा दिख रहा है बिना किसी एरर के. ओके. और आप चाहें तो इस पे ईच रो पे अपनी फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर सकते हैं कि when someone click on this so more details open and this will give you a this will move to a new activity and this activity uh, कि दिख रहा है कि सारा यूजर्स का डेटा दिख रहा है जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी हमारे एपीआई में एड्रेस था हमारे कार्ड्स की इंफॉर्मेशन थी जो भी आप डेटा हमारा एपीआई से आ रहा है वो सारी चीजें को दिखा सकते. So that's all for today. If you have any doubt or query, please ask me on comment section. Thank you.